Hey everyone, we are discussion on the topic of रेटिनोस्कोपी कि रेटिनोस्कोपी क्या होती है, हम इसको कैसे करते हैं, क्या इसका प्रोसीजर होता है। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे। रेटिनोस्कोपी के इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे कि रेटिनोस्कोपी होती क्या है। ऑब्जेक्टिव मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट द एरर ऑफ रिफ्रैक्शन बाय यूटिलाइजिंग ऑफ न्यूट्रलाइजेशन based on the fact that when the light is reflected from the mirror into the eye, the direction in which the light will travel across the pupil will depend upon the refractive state of the eye. जो रेटिनोस्कोप होता है ये एक ऑब्जेक्टिव मेथड होता है एरर ऑफ रिफ्रैक्शन को फाइंड आउट करने के लिए। जो रेटिनोस्कोप के अंदर लाइट होती है वो मिरर पे रिफ्लेक्ट करती है और पेशेंट के प्यूपिल एरिया के अंदर जा करके एरर ऑफ रिफ्रैक्शन को फाइंड आउट करने का काम करता है। अगर हम इसके हिस्ट्री के बारे में जाने तो सर विलियम्स बोमेंस नोटिस अ पेक्युलर रिफ्लेक्स इन प्यूपिली ऑफ एस्टिग्मेटिक आई दैट अकर during ophthalmoscopy. Retinoscopy was initiated by Parent in 1881. Retinoscopy is actually modification of Foucault-Neff age method of determining the refractive power of the lens applied to the eye. Retinoscope, a small handled device, emits visible light towards the pupil of the eye, being analyzed and allow the operator to view the red reflex of light reflected back through the pupil from the ocular fundus। जैसे कि हमने बताया कि एक हैंड हेल्ड इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें से हम प्यूपिली रिफ्लेक्स को देखते हैं एंड एरर ऑफ रिफ्रैक्शन फाइंड आउट करते हैं। इसके अंदर जब हम चेक करते हैं तो हमें एक ऑरेंज कलर की ग्लो दिखाई देती है। ऑप्टिक्स ऑफ रेटिनोस्कोप, द डिटेल ऑप्टिक्स ऑफ रेटिनोस्कोप कैन बी कंसिडर्ड इनटू 3 स्टेज: इल्यूमिनेशन स्टेज, रिफ्लेक्स स्टेज, प्रोजेक्शन स्टेज। Illumination stage. The optics of illumination stage of retinoscopy is basically understanding of the concept of immediate source of light and the movement of the illuminated area of the fundus with the movement of the reflecting mirror. As immediate source of light, it refers to the image of original light source. It is formed by reflecting mirror. Reflex and projection stage. The light rays reflected back from the illuminated area from the fundus also form a reflex shadow in the pupillary area of subject. Reflex stage, which is observed by examiner by logging his on her eye with these light rays. Projection stage. The optics of reflection projection stage of the retinoscopy depending upon the refractive status of the eye. जैसा कि हमने कहा लाइट अगर हम रिफ्लेक्ट करते हैं प्यूपिली एरिया से हमको फंडस से लाइट शो होती है, ऑरेंज कलर की ग्लो दिखाई देती है एंड एग्जामिनर जो पेशेंट की आई चेक कर रहा होता है तो उसको ऑब्जर्व करता है। जब हम रेटिनोस्कोपी करते हैं तो हमको इस प्रोसीजर को करने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि हमको अगर रेटिनोस्कोपी करते हैं तो हमको एक डार्क रूम प्रोसीजर करना के लिए एक नीड होती है। इसमें ट्रायल सेट की ज़रूरत पड़ती है, ट्रायल फ्रेम होना ज़रूरी होता है, फोरोप्टर, डिस्टेंस विजन चार्ट एंड रेटिनोस्कोप। Type of retinoscope: reflecting mirror retinoscope. It is also known as Priestley Smith. It is cheap, consists of plane mirror and concave mirror. Center aperture is 3 to 4 mm in diameter. देखिएगा ये हमारा प्रिस्टले स्मिथ रेटिनोस्कोप होता है जिसको हम प्लेन मिरर रेटिनोस्कोप या प्लेन मिरर रेटिनोस्कोप भी कहते हैं। सेल्फ इल्यूमिनेटेड रेटिनोस्कोप, इट इज कॉस्टली। Self-illuminated retinoscope, it is costly, more popular type of self-illuminated retinoscope: spot retinoscope and streak retinoscope. Spot retinoscope consists of bulb with a tiny wired filament about 1 to 2 mm in size. जिसका फिलामेंट होता है वो 1 to 2 mm in size में होता है। This is imaged by convex lens of about 20 mm focal length to give a beam of light when is reflected by a mirror. Streak retinoscope. The streak retinoscope, the modern retinoscope, differ from the simple instrument previously described in two respects. Incorporates a concave mirror in addition to the plane mirror. The light source is in the form of streak rather than a spot.
प्रोसीजर ऑफ रेटिनोस्कोप, द पेशेंट इज मेड टू सिट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम द एग्जामिनर। एग्जामिनर और पेशेंट की जो डिस्टेंस होनी चाहिए वो 1 मीटर होनी चाहिए। पेशेंट शुड बी लुक एट अ फार पॉइंट, पेशेंट को हम जितना डिस्टेंस पे दिखाएंगे, जितना फार पॉइंट पे दिखाएंगे, पेशेंट का एकोमोडेशन पावर उतना ही ज़्यादा रिलैक्स रहेगा और रेटिनोस्कोपी प्रोसीजर आपके लिए उतना ही ईजी बन जाएगा। बाय रेटिनोस्कोप लाइट इज थ्रो ऑन द पेशेंट आई, द एग्जामिनर ऑब्जर्व अ रेड रिफ्लेक्स into the pupillary area of the patient eye. Retinoscope move in horizontal and vertical meridian. जब हम रेटिनोस्कोपी करते हैं तो हमें प्यूपिलरी एरिया में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों मेरिडियंस पे ग्लो को चेक करना होता है, तभी हम रेटिनोस्कोपी सही से कर पाएंगे। रेड रिफ्लेक्स हो, नो मोमेंट ऑफ रेड रिफ्लेक्स इंडिकेट मायोपिया ऑफ 1 डायोप्टर। अगर किसी पेशेंट को ग्लो में नो मोमेंट है, दैट मीन्स पेशेंट 1 डायोप्टर का मायोपिक होगा। जितनी पेशेंट की और एग्जामिनर की वर्किंग डिस्टेंस है, सेम डायोप्टर की पावर का पेशेंट मायोपिक होगा। विद मोमेंट के अंदर 3 कंडीशन होती है, पेशेंट इमेट्रोपिक भी रह सकता है, हाइपरमेट्रोपिक भी रह सकता है एंड मायोपिक भी रह सकता है, लेकिन -1 डायोप्टर से नीचे का। अगेंस्ट मोमेंट ऑफ रेड रिफ्लेक्स देन ऑलवेज मायोपिया ऑफ मोर देन 1 डायोप्टर। अगर किसी पेशेंट को हम रेटिनोस्कोपी कर रहे हैं और मोमेंट अगेंस्ट जा रहा है, दैट मीन्स पेशेंट मायोपिक होगा मोर देन -1 डायोप्टर का। If red reflex seen in pupillary area which move rapidly अर्थात low degree of refractive error, if move slowly high degree of refractive error, when the pupil is filled with reflex that is neutralized to your point, in the presence of astigmatism when the axis does not correspond with the movement of the mirror, the shadow appear to swivel around। रिफ्रैक्टिव स्टेटस की अगर हम बात करते हैं, जब हम ग्लो देखते हैं, अगर उसके मूवमेंट में तेजी है, अगर स्पीड ऑफ ग्लो तेज से जा रहा है, दैट मीन्स पेशेंट को लो डिग्री का एरर ऑफ रिफ्रैक्शन हो सकता है। लेकिन अगर जितना स्लो ग्लो में मूवमेंट होगा, पेशेंट का रिफ्रैक्टिव स्टेटस उतना ही हाई होता है। ओरिएंटेशन ऑफ रेड रिफ्लेक्स में भी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल ओरिएंटेशन, ओब्लिक ओरिएंटेशन एंड सीजर ओरिएंटेशन। Neutralization of red reflex by plane spot retinoscope, the movement of red reflex is neutralized by addition in increasingly convex spherical of lens when reflex move with the movement, or concave spherical lens when the reflex was moving against movement. When a spherical error alone is present, the movement of red reflex will be neutralized in both vertical and horizontal meridian. Finding the cylindrical axis in the presence of astigmatism with its principal axis horizontal and vertical, one axis is neutralized with the appropriate spherical lens and second vertical horizontal still show the movement of red reflex in the direction of axis of astigmatism। axis of astigmatism के केसेस में क्या होता है, astigmatism के केसेस में बेसिकली दोनों एक्सिस कभी भी हमारी सेम पावर से न्यूट्रलाइज नहीं होगी। अगर किसी को astigmatism है, दैट मीन्स उसका कॉर्नियल कर्वेचर या लेंस का कर्वेचर एबनॉर्मल होने की वजह से उसके वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल मूवमेंट में डिफरेंस आ जाता है। फाइंडिंग द सिलेंड्रिकल पावर विद द स्फेरिकल एंड सिलेंडर, विद स्फेरिकल ओनली, विद सिलेंडर ओनली। कॉमनली एम्प्लॉय साइक्लोप्लेजिक्स ड्रग्स आर, अगर हम साइक्लोप्लेजिक्स रिफ्रैक्शन करते हैं तो साइक्लोप्लेजिक्स रिफ्रैक्शन में रेटिनोस्कोपी में हम एट्रोपिन से रिफ्रैक्शन करते हैं 1% एट्रोपिन, होम्योट्रोपिन 2%, ट्रोपिकामाइड 0.5 to 1%, फिनाइलफेरिन 5 to 10%। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।